السلام علیکم ناظرین، دنیا بھر سے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں عبد المغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ رفال معاملے پر نظر ثانی کے لیے سپریم کورٹ نے کیا رضامندی کا اظہار۔ کیا کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، یہی ہمارا گناہ ہے؟ کشمیری قوم کو بدنام کیا جا رہا ہے، عمر عبداللہ کا الزام۔ کشمیری قائدین کی سیکورٹی ہٹائے جانے پر پی ڈی پی اور دوسری جماعتوں کی مذمت، بی جے پی نے کیا خیر مقدم۔ اپنے لوگ ہی پارٹی کو ختم کر رہے ہیں، ملائم سنگھ کا سنسنی خیز بیان۔ پلوامہ معاملے میں چارج شیٹ داخل، جیش محمد کے سربراہ اظہر مسعود کا نام بھی شامل۔ ڈھاکہ میں آگ لگنے کا دلخراش واقعہ، 70 افراد جاں بحق، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ۔ ملک پر عائد کی گئی امریکی پابندیاں حقیقت میں دہشت گردی، ایرانی صدر کی امریکہ پر تنقید۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ سپریم کورٹ رفیل جنگی طیارہ معاہدہ معاملے میں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے جمعرات کو رضامند ہو گئی ہے۔ وکیل پرشانت بھوشن نے چیف جسٹس نرنجن گوگوئی کی صدارت والی بینچ کے سامنے معاملے کا خصوصی ذکر کیا۔ جج گوگوئی نے کہا کہ ہم معاملے کو فہرست میں شامل کرنے کے لیے کچھ کریں گے، اس کے لیے بینچ قائم ہونی چاہیے۔ ایڈوکیٹ پرشانت بھوشن نے حکومت کی طرف سے حلف نامے میں غلط اطلاع دینے کی بنیاد پر نظر ثانی کی درخواست کی۔ واضح ہے کہ مرکزی وزراء یشونت سنہا اور ارون شوری کے علاوہ پرشانت بھوشن نے رفیل معاملے میں گزشتہ سال دسمبر کے اعلیٰ عدالت کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کی تھی۔ پلوامہ دہشت گرد حملے کے بعد ملک کے بعض علاقوں میں کشمیریوں پر ہوئے مبینہ حملوں پر لگام کسنے سے متعلق درخواست پر سپریم کورٹ میں اب جمعہ کو سماعت ہوگی۔ درخواست گزار طارق ادیب کی طرف سے داخل کی گئی درخواست پر چیف جسٹس نرنجن گوگوئی، جسٹس ایک ناگیشور راؤ اور سنجیو کھنہ کی بینچ پر یہ معاملہ آیا۔ درخواست گزار کے وکیل نے دلیل پیش کی کہ یہ معاملہ انتہائی سنگین ہے اور اس پر فوری سماعت ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس گوگوئی نے اس درخواست کی جمعہ کو سماعت کا تیقن دیا ہے۔ جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے قومی دھارے کی سیاسی جماعتوں کے قائدین کی سیکورٹی دستبرداری پر تشویش کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں پارلیمنٹ اور اسمبلی انتخابات کے لیے تیار ہونا چاہیے، تو دوسری طرف ہمیں سیکورٹی سے محروم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک پوری قوم کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کشمیریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہمارے بچے جو باہر ریاستوں میں پڑھتے ہیں انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عمر عبداللہ کا کہنا تھا کہ کیا ہمارا قصور یہی ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم کشمیر وادی میں اکثریت میں ہیں؟ کیا اس کے لیے ہمیں بار بار سزا دی جاتی ہے؟ کیا اسی لیے ہم پر بار بار شک کیا جاتا ہے؟ تو ہمارا قصور کیا ہے؟ کیا ہمارا قصور صرف اتنا ہی ہے کہ جموں کشمیر کی ریاست جو ہے باقی ملک کے مقابلے ایک واحد ریاست ہے جہاں پہ اکثریت جو ہے مسلمانوں کی ہے؟ کیا اسی چیز کے لیے ہمیں بار بار سزا دی جائے گی؟ کیا اسی چیز کے لیے بار بار ہم پہ شک کیا جائے گا؟ اور افسوس کی بات یہ کہ جہاں پہ ہم چلیے بی جے پی سے ہم نے زیادہ امید رکھی نہیں تھی، وزیر اعظم سے ہم نے امید کی تھی، کیونکہ ہم سوچ رہے تھے کہ سیاست کو ایک طرف رکھ کے وہ شاید کچھ کہیں۔ جہاں وزیر اعظم خاموش، وہاں پہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ملک کے سب سے بڑے اپوزیشن پارٹی کی بھی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی اس تمام معاملے میں خاموش رہے۔ ہم امید کر رہے تھے کہ ہمدردی اور مورل سپورٹ کے دو الفاظ ہم کم از کم کانگریس سے تو سنیں۔ کشمیر کے پلوامہ میں سی آر پی ایف کے قافلے پر ہوئے دہشت گردانہ حملے کی قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA جانچ کر رہی ہے۔ حملے کے 6 دن بعد NIA نے FIR درج کی۔ FIR میں دہشت گرد تنظیم جیش محمد اور اس کے سربراہ مسعود اظہر کا نام بھی شامل ہے۔
वाज़ेह है कि 14 फरवरी को पुलवामा में CRPF के काफिले पर फिदायीन हमला हुआ था। इसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। जैश मोहम्मद ने एक वीडियो जारी करके इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। इस हमले के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान रिश्ते में कशीदगी पैदा हो गई है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के मुताबिक शुरुआती जांच में NIA को इस बात के काफी सबूत मिले हैं कि इस हमले में जैश सरगना मसूद अजहर का हाथ है। हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बताया है कि दहशतगर्द तंजीम जैश मोहम्मद पुलवामा दहशतगर्द हमले के सिलसिले में जिम्मेदारी कबूल करने वाले और भी वीडियोस जारी कर सकती है। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इंकशाफ किया है कि जैश मोहम्मद पुलवामा दहशतगर्द हमले के सिलसिले में की गई तैयारी के वीडियोस जारी करने का मंसूबा रखती है। बताया गया है कि जैश मोहम्मद ये समझती है कि इस तरह के वीडियो जारी करने से वो कश्मीरी नौजवानों को अस्करियत पसंदी की तरफ माइल कर सकती है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने 14 फरवरी को पुलवामा में हुए शदीद दहशतगर्दाना हमले के बाद बड़ा कदम उठाते हुए यासीन मलिक, सैयद अली शाह गिलानी, सलीम गिलानी, मौलवी अब्बास अंसारी समेत 18 अलहदगी पसंद रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस ले ली है। इसके तहत ही 155 रहनुमाओं और समाजी कारकुनों की सिक्योरिटी को हटा दिया गया है। कश्मीर के अलहदगी पसंद कायदीन और दूसरे कौमी धारे वाली जमातों के कायदीन की सिक्योरिटी वापस लिए जाने पर कश्मीरी कायदीन की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। PDP के लीडर वहीद पर्रा ने कहा है कि इस तरह के इक़दाम से उनकी नीयत जाहिर होती है। सियासी मफाद के लिए इस तरह का फैसला लिया गया। उनका कहना था कि कश्मीर जैसी रियासत में हमेशा खतरा लगा रहता है और इस तरह के अमल से हुकूमत की नीयत वाज़ेह हो जाती है। पॉलिटिकल प्रोसेस को कमज़ोर करना चाहते हैं और सिक्योरिटी विड्रॉल से ये टाइम बाय करना चाहते हैं, ब्लेम शिफ्ट करना चाहते हैं ताकि इन पे ब्लेम ना आ जाए या इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स ना हो। तो ये स्टेट गवर्नर रूल में है। पॉलिटिकल प्रोसेस का क्या मतलब, आप पॉलिटिकल प्रोसेस को ख़त्म करने से क्या होगा? तो हम लोगों की सिक्योरिटी विड्रॉ करने से हमें एंडेंजर करने की कोशिश की जा रही है, इंटिमिडेट करने की कोशिश की जा रही है। दे आर ट्राइंग टू थ्रेटन अस, दे आर ट्राइंग टू वार्न अस, और व्हाटएवर दे आर ट्राइंग टू डू, लेट देम डू देयर बेस्ट, इट विल नॉट स्टॉप आवर वर्क। दूसरी जानिब कश्मीर बीजेपी के लीडर अल्ताफ ठाकर ने कहा है कि अलहदगी पसंद कायदीन की सिक्योरिटी वापस लेने का फैसला पहले लिया जाना चाहिए था। ताहम इन्होंने कहा कि वो मरकजी हुकूमत से अपील करते हैं कि हुर्रियत से ज़्यादा कौमी धारे की पार्टियां मुल्क की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा हैं, क्योंकि ये पार्टियां अस्करियत पसंदों को शहीद का दर्जा देती हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उधर JDU कश्मीर के लीडर GM शाहीन ने कहा है कि मुस्तकबिल के लिए कश्मीरी कायदीन की सिक्योरिटी से दस्तबरदारी मुस्तकबिल के लिए ठीक नहीं। उनका कहना था कि अगर किसी कश्मीरी लीडर के साथ कुछ नागहानी वाक़या पेश आता है तो फिर से सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी। उनका कहना था कि मरकज़ ने बचकाना फैसला लिया है। कांग्रेस ने पुलवामा हमले पर कहा कि वज़ीर-ए-आज़म दहशतगर्दी पर सियासत कर रहे हैं। सुरजेवाला का कहना था कि जब पुलवामा में मुल्क 40 जवानों के शहीद होने पर गमज़दा था, उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म मोदी उत्तराखंड के एक पार्क में कश्ती पर बैठकर एक चैनल के लिए शूटिंग कर रहे थे। उनका कहना था कि किसी भी वज़ीर-ए-आज़म का ये इंतहाई गैर इंसानी और शर्मनाक रवैया है। इन्होंने आज तक ऐसा रवैया नहीं देखा। दूसरी तरफ DG, BSF, DGI, TBP, NS, GDG और CISF DG ने वज़ारत दाखिला के अहदेदारों से मुलाकात की। अब इस मुलाकात की तफसीलात सामने अभी तक नहीं आई हैं, ताहम सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल होने की इत्तलात मिली हैं। दूसरी तरफ हिंदुस्तानी फ़ौज के सरबराह बिपिन रावत ने आज लड़ाका तैयारे में सफ़र किया। उनका कहना था कि ये एक बेहतरीन तजुर्बा था और वो समझते हैं कि तैयारा बेहतरीन सलाहियतों का हामिल है और ये मुल्क की फ़िज़ाई ताकत में और भी इजाफा करेगा। इन्होंने फ़िज़ाइया का भी शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने कहा है कि तैयारे की टारगेटिंग बहुत अच्छी है। पायलट ने उन्हें दिखाया कि रात में भी किस तरह से हम निशाना लगा सकते हैं और बम और रॉकेट्स बराबर निशाने पर पहुंच रहे हैं। इससे पहले हिंदुस्तानी फ़ौज के सरबराह बिपिन रावत ने लड़ाका तैयारे में सफ़र किया। बेंगलुरु एयर शो के दौरान इस तैयारे को रखा गया था। पुलवामा हमले के तनाजुर में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तरफ से बातचीत की पेशकश को लेकर फिल्मसाज हिदायतकार राम गोपाल वर्मा ने इमरान खान को तंज का निशाना बनाया। अपने एक ट्वीट में राम गोपाल वर्मा ने तंज करते हुए कहा कि अगर बातचीत के जरिए मसाइल के हल होते तो आपको 3 शादियां करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन्होंने इमरान खान से ये भी पूछा कि क्या वो हिंदुस्तानियों को ये सिखा सकते हैं कि कई टन RDX का धमाका करने के लिए आने वाले शख्स से किस तरह बातचीत की जा सकती है। हम तमाम हिंदुस्तानी इस तरह आपको ट्यूशन फीस अदा करेंगे।
पुलवामा में हुए हमले के लिए शरद यादव ने पाकिस्तान के अलावा हिंदुस्तान की मौजूदा मरकजी हुकूमत को भी जिम्मेदार करार दिया। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंटेलिजेंस के कैसे नाकाम हो गई, इस पर बातचीत होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। अमित शाह ने बेंगलुरु में जलसे आम से खिताब करते हुए कांग्रेस पर सख्त तनकीद की। इन्होंने कर्नाटक के मौजूदा वजीर आला पर भी तनकीद की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान मौक़ों की सरजमीन के तौर पर उभर कर सामने आया है। इंडिया कोरिया बिजनेस सिम्पोजियम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि जब हम हिंदुस्तानी ख्वाब को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, हम ख्याल शराकतदारों के ख्वाहां हैं और हम समझते हैं कि जनूबी कोरिया एक हकीकी शराकतदार साबित होगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म मोदी ने गेमहे के मेयर सियांगोन से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने उन्हें पौधा भी तोहफे में दिया। समाजवादी पार्टी को खत्म कौन कर रहा है? अपनी ही पार्टी के लोग। पार्टी के बानी मुलायम सिंह यादव ने इन ख्यालात का इजहार किया। एक प्रोग्राम के दौरान पार्टी कायदीन और कारकुनों से खिताब करते हुए मुलायम सिंह यादव का कहना था कि इतनी मजबूत पार्टी बनी थी, तन्हा हमने 3 बार हुकूमत तश्कील दी, तीनों ही बार हमारे ही वजीर आला रहे। मुलायम सिंह यादव का कहना था कि हम कोई सियासत नहीं कर रहे, बल्कि हम सही बात सामने रख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक दुकान पर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाने पर चिकन पीस पर 10 रुपये की छूट दी जा रही है। दुकान के मालिक ने बताया है कि 10 रुपये की छूट लोगों के लिए क्या मायने रखती है, इससे इसका इल्म नहीं है, लेकिन लोगों के दिल से एक बार पाकिस्तान के खिलाफ नारे सुनना वो चाहते हैं। दूसरी तरफ पुलवामा दहशतगर्द हमले के महलूक फौजियों के अफराद खानदान की मदद के लिए उत्तर प्रदेश के एक पुलिस कांस्टेबल अतिये वसूल कर रहा है। फिरोज खान नामी इस कांस्टेबल की पोस्टिंग रामपुर में बताई गई है। ये अपनी बाइक पर घूमते हुए शहीद फौजियों के अफराद खानदान के लिए अतिया वसूल कर रहा है। खबर आंध्र प्रदेश से। आंध्र के कृष्णा जिले के इब्राहिमपट्टनम के पास तेलंगाना रोड कॉरपोरेशन की बस में आग लगने का वाकया पेश आया। बताया गया है कि यह बस विजयवाड़ा से हैदराबाद आ रही थी। अचानक बस के पिछले हिस्से से धुआं निकलने लगा। ड्राइवर ने मुस्तैदी के साथ बस को रोक दिया। फौरी फायर इंजन को इत्तला दी गई, जिन्होंने मुकाम वाकया पहुंचकर आग पर काबू पाया है। अब लेते हैं एक वक्फा। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर एक और नजर। रफाल मामले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किया रजामंदी का इजहार। क्या कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत है, यही हमारा गुनाह है? कश्मीरी कौम को बदनाम किया जा रहा है, उमर अब्दुल्ला का इल्जाम। कश्मीरी कायदीन की सिक्योरिटी हटाए जाने पर पीडीपी और दूसरी जमातों की मजम्मत, बीजेपी ने किया खैर मकदम। अपने लोग ही पार्टी को खत्म कर रहे हैं, मुलायम सिंह का सनसनीखेज बयान। पुलवामा मामले में चार्जशीट दाखिल, जैश ए मोहम्मद के सरबराह अजहर मसूद का नाम भी शामिल। ढाका में आग लगने का दिलखराश वाकया, 70 अफराद जाँ बहक, हलाकतों में इजाफे का खदशा। मुल्क पर आयद की गई अमेरिकी पाबंदियां हकीकत में दहशतगर्दी, ईरानी सदर की अमेरिका पर तनकीद। और अब बढ़ते हैं बैनुल अक़वामी खबरों की जानिब। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका के एक तारीखी इलाके में आग लगने से 70 अफराद हलाक हो गए हैं। चारशंबे की शाम एक रिहायशी इमारत, जिसे जुज़वी तौर पर कीमियाई गोदाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था,
आग वहां लगी। मुकामी मीडिया के मुताबिक आग ने करीबी इमारतों को भी अपनी लपेट में ले लिया। हुक्काम ने बीबीसी को बताया कि आग से हलाकतों की तादाद 70 तक जा पहुंची है, ताहम आग पर काबू पा लिया गया है। बांग्लादेशी हुक्काम का कहना है कि आग गैस सिलेंडर की वजह से लगी, जबकि इमारत में केमिकल का गोदाम और प्लास्टिक का सामान मौजूद था, जो आग के फैलने का सबब बना। आग ने 4 करीबी इमारतों को भी अपनी लपेट में ले लिया, जिनको कीमियाई गोदाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। आग लगने से इलाके में ट्रैफिक जैम रही। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों के लिए बचकर निकलना नामुमकिन था। ढाका के सदियों पुराने इलाके चक बाजार में इंतहाई तंग गलियां हैं, जहां हर 1 इंच के फासले पर रिहायशी इमारतें मौजूद हैं। ढाका के मेट्रोपॉलिटन पुलिस के डिप्टी कमिश्नर इब्राहिम खान के मुताबिक मुतासरीन में इस इमारत से बाहर मौजूद लोग भी शामिल हैं। इत्तलात के मुताबिक बहुत से लोग इमारत में फंस कर रह गए थे, जो बाहर निकलने में कामयाब ना हो सके। दूसरी तरफ ढाका के हॉस्पिटल में जहां लाशें और जख्मियों को रखा गया, मुतासरा खानदानों को ज़ारो कतार रोते हुए देखा गया। महलूकीन और जख्मियों की बड़ी तादाद हॉस्पिटल के पास जमा देखी गई। कई लाशों की शिनाख्त का अमल अभी भी जारी है। ढाका मेडिकल कॉलेज में सिक्योरिटी को भी चौकस देखा गया है। ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा है कि उनके मुल्क पर आयद की गई अमेरिकी पाबंदियां हकीकत में दहशतगर्दी से जुड़े इक़दाम हैं। इन्होंने वाज़ेह किया है कि बैनुल अक़वामी कंपनियों और बैंकों पर अमेरिकी दबाव ये जाहिर करता है कि पाबंदियां 100% दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हैं। ईरानी सदर ने इन ख्यालात का इजहार मुल्की काबीना के इजलास में किया, जिसकी तफसीलात ईरानी मीडिया ने बताई। रूहानी के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान कशमकश अपने उरूज पर है, क्योंकि अमेरिका ईरान के खिलाफ अपनी पूरी ताकत और क़ुव्वत का इस्तेमाल कर रहा है। अफगानिस्तान के सियासी अकाबरीन और कबायली माहिदीन का इजलास अगले माह तलब कर लिया गया है। इस इजलास को लोया जरगा कहा जाता है। इस जरगे में तालिबान के साथ अमेरिकी अमन मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त को ज़ेर बहस लाया जाएगा। लोया जरगा का इजलास तलब किए जाने की तफसीलात अफगान सदर के खुसूसी मंदूब बराए अमन मोहम्मद उमर दाऊद ने टेलीविज़न पर एक खिताब के दौरान बताई। इस इजलास में एक ऐसा फ्रेमवर्क तश्कील देने की कोशिश की जाएगी जिसके तहत काबुल हुकूमत भी अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकराती अमल शुरू कर सके। फ़लस्तीनी इंतज़ामिया के सदर महमूद अब्बास ने इसराइल की जानिब से टैक्स वसूली की मदद में दी जाने वाली रकम कबूल करने से इनकार कर दिया। इसराइल ने फैसला किया था कि फ़लस्तीनी इलाकों से वसूल की जाने वाली टैक्स की रकम में वो रकम काट ली जाए जो फ़लस्तीनी इंतज़ामिया की जानिब से अस्करियत पसंदों के ख़ानदानों की माली मुआविनत के लिए दी जाती है। फ़लस्तीनी इंतज़ामिया का ये इक़दाम 1993 में तय पाने वाली ओस्लो अमन डील के लिए एक और धक्का करार दिया गया है। इस डील के मुताबिक इसराइल को इख्तियार दिया गया था कि वो मकबूजा मगरबी किनारे से टैक्स जमा करके और फ़लस्तीनी इंतज़ामिया के हवाले करे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान एक मुजव्वज़ा मुलाकात ताख़िर का शिकार हो गई। नेतन्याहू को जुमेरात 21 फरवरी को मॉस्को में रूसी सदर से मिलना था। इसराइली हुकूमत की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि अब ये मुजव्वज़ा मुलाकात चंद रोज़ बाद होगी, ताहम दोनों रहनुमा जुमेरात को टेलीफोन पर बातचीत करेंगे और मुलाकात के लिए नई तारीख का तयन भी करेंगे। फिलहाल मुलाकात के इस इल्तिवा की वजूहात नहीं बताई गई है। खलीजी रियासत मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने कतर पर बहरी माल बर्दारी के सिलसिले में आयद पाबंदियों में नरमी का फैसला किया है। इस फैसले की तस्दीक इमारती हुकूमत की सनती शोबे और बंदरगाही हुक्काम को दिए गए एक सरकारी हुक्म से भी हो गई है। यह हुकूमती ख़त 12 फरवरी को जारी किया गया था और इसमें वाज़ेह किया गया है कि रियासत कतर के लिए सामान की तरसील से मुताल्लिक़ तमाम साबिक़ा अहकामात मनसूख कर दिए गए हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान एशियाई दौरे के अगले पड़ाव चीन पहुंच गए हैं। मोहम्मद बिन सलमान 2 रोज़ा दौरे में चीनी आला हुकाम और चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान का सऊदी वली अहद के दौरे पर कहना था कि हालिया सालों में चीन और सऊदी अरब के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन में मुस्बित रफ्तार देखी गई। चीन उम्मीद करता है कि इस दौरे से दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात में इजाफा होगा। सऊदी अरब चीन को तेल फरोख्त करने वाला अहम मुल्क है, जबकि चीनी बरामदात की सऊदी अरब अहम मार्केट है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इन्होंने शाम में दाइश में शामिल होने वाली एक खातून हुदा मुसना के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी आयद करने का हुक्म दिया है। दूसरी तरफ मुसना के वकील ने कहा है कि उनकी मौकिला अमेरिका की शहरी हैं और सदर ट्रंप इसे अमेरिका में वापस आने से नहीं रोक सकते। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि मैंने वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो को हुक्म दिया कि वो हुदा मसना को अमेरिका में दाखिल होने की इजाज़त ना दें।
مصری حکام نے 2015 میں ملک کی چیف پروسیکیوٹر کو قتل کرنے کے جرم میں کالعدم سیاسی مذہبی تنظیم اخوان المسلمون کے 9 مشتبہ کارکنوں کو سزائے موت دی ہے۔ ان افراد کی سزاؤں کی توثیق گزشتہ برس نومبر میں اعلیٰ ترین عدالت نے کر دی تھی۔ سزائے موت پانے والوں کی شناخت کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ ان مجرموں کو یہ سزائیں مصری چیف پروسیکیوٹر حشام برکات کو ایک بم نصب کر کے قتل کرنے کے جرم میں سنائی گئی ہیں۔ رواں برس کے دوران مصر میں اب تک 15 افراد کو سزائے موت دی جا چکی ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ کا کہنا ہے کہ عالمی اور علاقائی حالات سے قطع نظر چین کی ایران کے ساتھ بہتر تعلقات کی خواہش میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ چینی صدر نے یہ بات چہارشنبے 20 فروری کے روز ایرانی پارلیمان کے اسپیکر کے ساتھ ملاقات کے دوران کہی۔ صدر شی کا یہ بھی کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے مابین دیرانہ دوستی اور اعتماد کا رشتہ ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ اگر امریکہ کی جانب سے کم اور درمیانی فاصلے تک مار کی جانے والی میزائلوں کی تنصیب کی گئی تو روس امریکہ کو ہدف ملے گا۔ اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں پوٹن نے کہا ہے کہ میزائلوں کی تنصیب کی صورت میں روس رد عمل میں تنصیب کے مقامات والی ریاستوں کے علاوہ امریکہ کو ہدف بنانے والے میزائل نصب کر دے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں روس محض آرائی نہیں چاہتا اور میزائلوں کی تنصیب میں پہل نہیں کرے گا۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ رفال معاملے پر رضا رسانی کے لیے سپریم کورٹ نے کیا رضامندی کا اظہار۔ کیا کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، یہی ہمارا گناہ ہے، کشمیری قوم کو بدنام کیا جا رہا ہے، عمر عبداللہ کا الزام۔ کشمیری قائدین کی سیکورٹی ہٹائے جانے پر پی ڈی پی اور دوسری جماعتوں کی مذمت، بی جے پی نے کیا خیر مقدم۔ اپنے لوگ ہی پارٹی کو ختم کر رہے ہیں، ملائم سنگھ کا سنسنی خیز بیان۔ پلوامہ معاملے میں چارج شیٹ داخل، جیش محمد کے سربراہ اظہر مسعود کا نام بھی شامل۔ ڈھاکہ میں آگ لگنے کا دلخراش واقعہ، 70 افراد جاں بحق، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ۔ ملک پر عائد کی گئی امریکی پابندیاں حقیقت میں دہشت گردی، ایرانی صدر کی امریکہ پر تنقید۔ اسی کے ساتھ دنیا بھر سے اختتام کو پہنچی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔